Good. Hello, Suraj. Hi, Karan. Good to have Hello. you guys. Thank you so Thanks. much. Yeah. So, anybody who's listening this conversation, Suraj and Karan are the founder of Learning Roots, जो कि एक edtech platform है. And the intention of this having conversation is to understand because edtech एक ऐसा industry है that's going through a very fluid times. Especially with the Baiju के जैसा response आया है, and the same time Learning Roots is actually trying to propose this solution with respect to it's a very personalized learning at the same time counseling per se as well. So rather than me delving into the details of it, अगर मैं सूरज और करण अगर आप लोग थोड़ा सा इनफैक्ट थोड़ा डिटेल में बता सको ये लर्निंग रूट्स क्या है, at the same time how it is trying to propose a value. So, if I tell you, so thank you for having us first of all. And I think that's this podcast probably there are a lot of podcasts, but I think this works as a very wonderful platform for a lot of people to at least hear about the stories, the hustle culture, the success stories, the failures. I think this comes with a lot of learning. But when I talk about learning roots, so yes, so it's a marketplace. If I have to be बाकी जितने भी आपके viewers हैं उनकी थोड़ी understanding के लिए, it's a marketplace which connects the potential universities with the right students, right? So you'll find all the, and we do not specialize into the full-time courses. It is only the online courses, whatever are available in the country from any top business schools, obviously considering the government approvals and everything. So जितने भी approved colleges हैं आपके जो online space पे operate करते हैं, so we connect all these business schools with the potential learners across all from India and obviously out of India as well. So yes, this is it. अगर आपको मुझे niche बताना है, and rest if I talk about how exactly we help students, so there are a lot of parameters on which actually we cater students. Parameters could be, आपने कभी देखा हो कभी हम अगर 12th पास करते हैं या ग्रेजुएशन करते हैं या मास्टर्स करते हैं, then we normally take consultation from our seniors, brothers, sisters या friends कि बताओ कौन सा कॉलेज है, कैसा करना चाहिए. So there are a lot of questions which are unanswered at the end, because this has been a personal experience. जब हम लोग अपना मास्टर्स कर रहे थे 8-10 years back, then we had a lot of questions, but कभी कभी कुछ questions आंसर हो जाते हैं, कुछ आंसर्स नहीं होते हैं. So with this, we started this. We wanted, there are so many people with this same, same position. People who are into the same position who do not have understanding, and we believe that this is not just a mere course. I think it's a career for someone. So एक wrong selection of course might because I think might land them to a difficult position जहाँ पे उनके लिए अपने career को different pace में लेके जाना थोड़ा difficult हो जाता है. Because if I invest my 3 years or maybe 4 years in a program, and after that I get to know that this program has no value, or probably this was not aligning with my past experience, then it's a big blunder. So we actually when we started learning roots, so we wanted a student should get a 360 360 approach follow किया जाए, जहाँ पे at least he should understand there are different parameters जिस पे courses और colleges evaluate करके वो एक rightful decision अपने के लिए ले पाए. मतलब इसको sum up थोड़ा सा करूंगा मैं तो back in our time we talk about like 10-15 years back or maybe 20 years back ऐसा होता था कि there were only 3 professions: doctor, engineer, right? And otherwise the people are not being considered as a students also, right? So लेकिन now the contrast is this: now we have ample number of your courses available in the market, right? हर एक छोटा का सब डिवीजन आ चुकी है, multiple courses. तो उस टाइम एक डेफिसिट था, यहाँ पर एक्स्ट्रा हो चुका है at the current time. So of course students get confused. I'm not talking about the students जो बल्कि हमारे शहरों में हैं, शहरों के स्टूडेंट, दिल्ली के, बैंगलोर के, इनको तो चलो ठीक है, they get guidance because माहौल वैसा है. पर अगर मैं tier 2, tier 3 cities की बात करूं, villages की बात करूं, डेफिसिट वहां पर आज तक है. वहां पर आज तक लोगों को ये नहीं पता होता कि गवर्नमेंट के कौन से अच्छे कॉलेजेस है जहां पर हम सस्ते में एडमिशन ले सकते हैं. They don't know कि क्या मुझे इस कोर्स करने से फायदा होगा. अगर मैं वहां पर एक वो पैरामीटर चल पड़ता है कि अगर मैं ज्यादा फीस दे रहा हूं तो मेरी ज्यादा अच्छी पढ़ाई होगी. तो बहुत सारे मिथ हैं, बहुत सारे बैरियर्स हैं, इंफॉर्मेशनल बैरियर्स हैं. तो लर्निंग रूट का आइडिया ये है फर्स्ट ऑफ ऑल टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन थ्रू आउट इंडिया. मैं जो विजन अभी होल्ड करता हूं सो दैट वन डे वी हैव आवर ऑफिसेज और आवर पीपल रीचिंग अक्रॉस द बॉर्डर. वो लद्दाख से लेकर वो कन्याकुमारी तक, एक जैसे बोलते हैं ना कि वो पूरा डिस्टेंस कवर करना. सो वी कैन बी अक्रॉस विद दोज पीपल who want to choose a relevant program, right? पैसा आज के टाइम में, if you talk about today's people are burning a lot of money on education, and there has been time जब एक regular education को काफी value दी जाती थी, आज भी दी जाती है. The idea is to learn skill, not to get a ticket.
Of course, there are ways to get along with that skill part. और काफी सारी implications भी होती है, ठीक है, you need to have a certificate and everything, but at the end of the day, the confusion is which program is relevant for what person. So this we help. How do we help it? We have a team of counselors that have been trained into understanding those queries, who have been working from past around 7-8 years into the similar industries. So we have a special counseling team which help students as well as working professionals. Now I want to bifurcate. Our target market is working professionals. Majority of them. People who are just starting with their career, because see, we are into higher education model, right? Okay. But is we help people to find the relevant courses after 12th, right? 10th के बाद तो usually लोग अपना 10, 12 करते हैं, 11, 12 करते हैं. Otherwise, what people do is they do different kind of certifications. So what we help is we help people to find a relevant program, even for the working professional, to find a relevant program. Supposedly, you are a working professional, and majority of the cases, you know, B.Tech engineers, after 5-6 experience, they do not have time to involve in much of the online programs also. And they end up getting into a program, ऐसे program में चले जाएं जहां पर उनको सुबह से शाम तक classes लगानी है, classes ना लगाए तो वो fail हो जाएंगे. तो it gets very difficult एक working professional के लिए भी ये program complete करना है. Enrollment अलग बात है, पर क्या वो complete कर पाएंगे? Question mark वो भी है. तो हर किसी के लिए everybody does not need to be in a top business school also, or everybody do not need to go through a very hard formatting in online courses जहां पर you have to, you know, mandatory काफी चीजें आपको करनी पड़ती हैं. तो for हर इंसान के लिए एक अलग requirements हैं. So we have understood this by working in this scenario, and that is the reason of success of learning route also, कि यहाँ पर हमें हर इंसान के लिए एक specific course है उसकी needs के हिसाब से. So that what we focus on delivering with an unbiased. तो ये assume करना fair है कि learning routes के जो target audience are into the tier 2 and tier 3 cities? Not exactly. I would differ to this. To target segment हमारा, that is actually, you know, all the metro cities plus our individual, you know, personal interest हमारा आता है tier 2 or 3 cities, you know, because we want to personally, you know, empower probably these two, you know, tiers की tier 2 or 3 cities में भी बच्चे के पास वो resources होने चाहिए and वो communication होना चाहिए so that he can reach to that, you know, potential business school. Otherwise, I think if you see, you know, massive, I think हमारे पास जो massive student consultations आती हैं वो मेट्रो सिटी से भी आती हैं, बिकॉज यू नो ऑब्वियसली आज के डेट में तो भागता हुआ शहर है मेट्रो सिटी. यू टॉक अबाउट मुंबई, बैंगलोर, हैदराबाद, एनसीआर, यू नो दीज आर वन ऑफ द, यू नो, डोमिनेंट एग्जांपल्स. इफ यू सी द फिगर्स व्हाट वी हैव सीन इन पास्ट 8-10 इयर्स, सो जो मैक्सिमम एनरोलमेंट्स आते हैं या जो कॉलेजेस, यू नो, जो कॉलेजेस के पास होते हैं ऑनलाइन प्रोग्राम्स में, ये आपका इन मेट्रो सिटी से ज्यादा आता है. बिकॉज आज के डेट में कहीं अभी भी ना काफी सारे रीजनल कॉलेजेस हैं जिनका डोमिनेशन टियर 2 और 3 सिटीज में है, जो सिर्फ एक ट्रेडिशनल वे ऑफ लर्निंग प्रोवाइड कर रहे हैं, जहां पे बच्चे को बुक्स तो मिल जाती है और साल में एक बार एग्जाम भी दे देता है, बट उसे पता नहीं कि एक्चुअली वो इम्प्लीमेंटेशन प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे होने वाला है. इफ यू नो, अगर आपको मैं थोड़ा सा 4-5 साल पहले पीछे लेके जाऊं, ज्यादा पीछे नहीं जाएंगे, 4-5 साल पीछे अगर लेके जाऊं, काफी सारे यू नो बीटेक ग्रेजुएट्स, काफी कॉलेजेस में बीटेक, यू नो, वाज वन ऑफ द मोस्ट डिमांडेड एजुकेशन अगर आप देखें 12th के बाद. सो एवरी पेरेंट्स वांटेड देयर स्टूडेंट टू बी इंजीनियर. तो इतने सारे बीटेक ग्रेजुएट्स, बट अगेन व्हेन आई टॉक अबाउट, यू नो, द प्लेसमेंट्स, जब कंपनीज आती हैं उन्हें पिक करने के लिए, सो दे लैक स्किल सेट. व्हाई? बिकॉज दीस पीपल डू नॉट नो कि यार मुझे बीटेक करना क्यों था, और अगर मैंने कर लिया है तो उसके बाद मैं आगे क्या क्या चीजें कर सकता हूं. तो जो गैप था ना, वो स्टूडेंट्स ने एजुकेशन तो किया है, नाउ यू नो स्टूडेंट स्टार्ट ब्लेमिंग कि यार मैंने तो बीटेक किया था, जॉब नहीं है, गवर्नमेंट के कोई इनिशिएटिव नहीं है. बट यू नो इंट्रोस्पेक्ट करना इंडियंस का थोड़ा सा रहता है, इंट्रोस्पेक्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि यार हमने भी शायद अपनी तरफ से एफर्ट नहीं मारा, या हमने वो अंडरस्टैंड नहीं किया कि एक्चुअली मुझे किस फील्ड में आगे ग्रो करना है या मेरे इंटरेस्ट एरियाज क्या है. सो वी डू नॉट वांट कि वो मेट्रो सिटीज में ही वो चीज, यू नो, क्लब होकर रुके. वी रियली वांट टियर 2 और 3 सिटीज में जो पोटेंशियल है, बिकॉज लास्ट 2 years में व्हाट वी हैव सीन, एंड मैं इसके लिए इंडियन गवर्नमेंट को काफी, यू नो, आई वुड अप्रिशिएट, बिकॉज द काइंड ऑफ स्टेप्स दे हैव टेकन इन लास्ट 2-3 years इनटू द ऑनलाइन सेगमेंट, दैट इज रियली कमेंडेबल. जहां से आई थिंक नाउ वी हैव सीन a good traffic, good volume of people coming from tier 2 and tier 3 cities. So I think just to answer this question, तो सिर्फ metro cities में नहीं, वो I think tier 2 और 3 cities में भी काफी dominant है, और वो काफी अभी rapid scale से move भी कर रहा है. The idea हमारा ये होता है कि we need to reach each and every territory where the people, where we have major influx of students who are looking for a career guidance. अब tier 2 और tier 1 cities में majorly ये चीज काफी people are self aware about things, right? Of course a guidance always work, but our major our area of concern is tier 2, tier 3 cities where the guidance inflow or the information inflow is on a minimal end.
पर अब वो भी इंफॉर्मेशन फ्लो भी कैसे कहूँ, आजकल मोबाइल तो सबके पास है, जियो का इंटरनेट एवरीबॉडी कैन गेट, राइट? सो इट्स जस्ट अबाउट द यूजेज, हाउ यू यूज द थिंग्स अप. हाँ नहीं, इनफैक्ट इसी पे एक स्टेटमेंट मुझे याद आया था कि कई बार ये भी कहते हैं जिसको कुछ नहीं समझ में आता चुपचाप इंजीनियरिंग कर लेता है, एंड इंजीनियरिंग करने के बाद देन वी स्टार्ट एक्सप्लोरिंग आर एक्चुअली द इंटरेस्ट. सो इनफैक्ट एक ट्रेंड सेट हो गया था. आई मीन दैट आई थिंक दैट इज स्टिल एप्लीकेबल. जब लोग इंजीनियरिंग करते हैं उसके बाद एमबीए करते हैं, उसके बाद बोलते हैं जॉब करेंगे, एंड देन दे से कि भैया आप बिजनेस करना है. सो ये यस, एक्चुअली ना आपने बहुत सही पॉइंट पिक किया है. एक्चुअली होता क्या था कि जो हमारे आईआईटीज थे, व्हेन यू सी जब एक बंदा इंजीनियर बनता है आईआईटी से, तो उसे पता है कि इफ आई वांट टू बी इन अ गुड पोजीशन, प्रॉब्ली आई नीड अ मास्टर्स डिग्री. तो वो इमीडिएटली बीटेक के बाद ना अपना मास्टर्स प्लान, एमबीए प्लान करते थे आईएम से. सो दीस पीपल हैव सेट दिस कॉम्बिनेशन कि ये ब्लेंड ना बहुत अच्छा चलता है इंडस्ट्री में, जो रियलिटी भी है. तो बट एवरीबॉडी डू नॉट नो. सो लोग बीटेक करते थे, फिर जो बीटेक का हाल हुआ वो एमबीए का भी हुआ. दैट देयर वर लॉट ऑफ एमबीए कॉलेजेस, एमबीए पीजीडीएम अक्रॉस कंट्री. लोग एमबीए कर रहे हैं, उसके बाद फिर बैंक पीओ की तैयारी कर रहे हैं. सो आप देख रहे हो अलाइन नहीं हो पा रहा, बिकॉज 4 years वहां स्पेंड किए, 2 years एमबीए में स्पेंड किया, मुझे बैंक पीओ की तैयारी करनी पड़ रही है. और ये दिस कुड बी रॉन्ग आल्सो, बट दिस इज आवर एक्सपीरियंस व्हाट वी हैव सीन इन लास्ट 7-8 years, कि हाँ यार ये फिर आई थिंक वो 6-7 years जो वेस्ट हुए हैं, या वो जहां पे एटलीस्ट वो थोड़ा सा सही गाइडेंस से ही कुड हैव पिक द राइट प्रोग्राम, तो वहां पे उसका टाइम वहां पे सेव हो जाता है. इट इज नॉट अबाउट द प्रोग्राम, आई थिंक इट इज अबाउट द टाइम, बिकॉज वन इट इज गॉन, देन देयर इज नो लुकिंग बैक. इसी पे मैं टच करना चाहता हूँ, बिकॉज द रीजन व्हाई आई वांट टू हाईलाइट दिस पार्ट एज वेल. जब मैं भी इंजीनियरिंग कर रहा था, या फिर इन जनरल मैं बता सकता हूँ, जब मैं अपने 12th के बाद ऑनेस्टली डिस्पाइट द फैक्ट कि मुझे इंजीनियरिंग नहीं करना है, मैं बहुत क्लियर था, लेकिन आपके सराउंडिंग ऐसे होते हैं कि बाय एंड हुक एंड क्रुक यू एंड अप डूइंग इंजीनियरिंग. व्हाई? बिकॉज यू डोंट नो द ऑप्शन. सेकंड इज यू वांट टू गेट अ एम्प्लॉयबल. तो भैया एक इंजीनियरिंग एक ऐसा डिग्री है कि इमीडिएटली आपको 4 साल के बाद, दो इट में नॉट गारंटी बट एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो जॉब लग जाता है, which is not the case with the normal graduation. ये जो mindset है, ये इतना ingrained हो चुका है कि people are going anywhere. I understand. See, अपना यहाँ पर ये बहुत सारी implications आती है. ये आती है एक तरह से ये भेड़ चाल है. See, it is if I have to say, it is somehow because majority of India it belongs to middle class and lower middle class, right? And we people basically operate from fear and insecurities. Right, तो always we want to be sure about the path which we have taken, right? तो बात वही है कि हम वो पाथ देखते हैं जिससे सबको सक्सेस मिली और हम वो पाथ ले लेते हैं. अब ये नहीं समझते कि उस पाथ पे हजारों लोग चल पड़े हैं. अब द कंपटीशन इज हाई, बट यस, अब वो फियर और इनसिक्योरिटीज है. इट टेक्स अ ह्यूज कल्चरल शिफ्ट एक रिक्वायर रहता है, जो कि अब आ रहा है. आई थिंक लास्ट 10 years में जो कल्चरल शिफ्ट एकदम ड्रास्टिकली आया है, दैट हैव वेव्ड ऑप्शन. पीपल हैव बीन चूजिंग दोज out of the blue options which are not very secure. तो वो एक पूरी सोसाइटी को एक शिफ्ट होना पड़ता है, एक अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ती है चीजों की. वो कल्चरल शिफ्ट आता है जब लोग भेड़चाल में नहीं चलते. एंड आई थिंक द टाइम ऑफ इंडिया हैज कम वेयर पीपल आर नॉट ऑपरेटिंग थ्रू देयर फियर्स एंड इनसिक्योरिटीज, दे आर टेकिंग रिस्क, राइट? तो India has a bright future ahead in terms of everything. And most importantly, होता है ना पहले आज की डेट में, जैसे just to add on to this point, now people they do not know कि और क्या क्या हो सकता है. So वो ये बताएगा कौन? If there are probably few people or a group of people or probably an agency or an organization, at least if they walk into this direction, यार इसके अलावा बीटेक, बीकॉम, बीफार्म, बीसीए, इन प्रॉब्ली जो सेट स्पेशलाइजेशंस है, इनके अलावा क्या कुछ और किया जा सकता है? आंसर इज बिग यस. सो प्रॉब्ली इफ यू आस्क मी, क्या लोगों को पता होगा कि जो जिस कॉलेज से वो कर रहे हैं, क्या वो कौन से गवर्नमेंट बॉडी से अप्रूव्ड होता है? आंसर इज गोना बी बिग टाइम नो. पीपल डू नॉट इवन नो. तो बात करें अगर कोर्सेज की, वो तो पता ही नहीं है. बट विद द राइट मेंटरिंग, आई बिलीव व्हेन दे अंडरस्टैंड ओके दीज आर द पॉसिबिलिटीज, देन प्रॉब्ली दे कैन पिक द ऑप्शन. अदरवाइज वो भेड़चाल वाला हिसाब है, वो चलता ही रहेगा, उसको रोकना काफी मुश्किल हो जाता है. करेक्ट. इसी पे मेरा सेकंड क्वेश्चन फॉलो अप ये जानना था कि जनरली जब 12th के बाद होता है, अगेन गोइंग बैक, नॉट इवन 12th के बाद, आई लीव द 12th के बाद, इनफैक्ट 10th के बाद, आज भी बच्चे, इनफैक्ट मेरा खुद का नेफ्यू है, बोलता है यार मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा. मैंने कहा तुझे किस में करना है? बोलता है मुझे किस में करना है, वो तो सेकेंडरी है, मेरे सारे दोस्त जा रहे हैं आपके साइंस में. मैंने कहा तुझे इंटरेस्ट है? बोलता है नहीं, बट क्या करूं, ऑप्शन है, कॉमर्स में कुछ फ्यूचर नहीं दिखता है. एंड दैट्स द रियलिटी. इनफैक्ट there is hundreds of such similar use cases जहाँ पे लोग बीकॉम करके एमकॉम करते हैं, उसके बाद फिर जाके जो with respect to monetary value या जॉब पर से आप देखोगे, it's not as, I shouldn't give a comparison, but with this monetary per se there is some comparative कमी होता है with respect to engineering.
So that's also a mindset, and it's a very ingrained mindset that people are being forced. Why? Because of after looking at the completion of degree or the job का जो salary शुरू होगा, CTC शुरू होगा, and so on and so forth. How old is your nephew? 15, 16. He just completed 10. See, everything can be structured in a way. Everything can be structured. Everything can be prepared because there's a lot of information right now available everywhere. It's not just Learning Route website. You can go on to Google. You go on to YouTube. YouTube is one of the finest things, I mean, which mankind has ever received. But yeah, if you watch it to use it, reels, अगर आप reels देखने के लिए जाओगे तो उसमें वही होगा. See, first of all, एक तो अर्जेंसी जो लोग न्यू लोगों को है ना, बच्चों में जो अर्जेंसी है कि यार मैं फटाफट अपना ग्रेजुएशन खत्म कर दूं, फटाफट 21 साल में जॉब में लग जाऊं, तो ये अर्जेंसी सबसे पहले खत्म करनी होगी. इट स्टार्ट्स विद पेरेंट्स. First, we need to tell our kids that okay, it is fine. You understand, you take your time. What exactly you want to do? वो आपकी 21, 22, 23 साल भी हो जाएगी, कुछ फर्क नहीं पड़ता उससे. Because you need to understand, in case you are not, आप अगर एक सही जगह पे नहीं है तो वहां से निकल के एक सही जगह पे आने में बहुत टाइम लगेगा. तो आप पहले से ही श्योर शॉट होके 2 चीज ट्राई करिए, 3 चीज ट्राई करिए. नहीं समझ में आता है, काउंसलिंग लीजिए, गाइडेंस लीजिए. एंड टू बी ऑनेस्ट, आई टेल यू व्हाट लर्निंग रूट आइडिया इज. हम कभी भी ऐसी जगह नहीं बनाना चाहते जहां पर हम सिर्फ एक चीज प्रमोट कर रहे हो. दैट इज, हर बिजनेस का आइडिया पैसा बनाना होता है, करेक्ट, और हर बिजनेस का आइडिया होता है स्केल में जाना. बट समटाइम्स कई बिजनेस एक मॉरल्स और एथिक्स को कहीं ना कहीं एक पैरामीटर रखते हैं, एंड दैट वी हैव. तो हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं है कि बस आपको गाइड करना है तो कोई भी एक चीज गाइड करके सपने बना के बता दिया जाएगा दैट कि आप ये लीजिए, इससे आपका ये हो जाएगा. बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे what we need to realize is what dream they can achieve. वो जो अचीव कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि शोर शॉट वहां पर रहेगा उनको. तो सबसे पहले तो बच्चों को ये बताइए कि जल्दी मत करिए, बहुत टाइम है आपके पास, बिल्कुल टाइम है कैरियर चूज करने का. अगर गलत कैरियर पे चले जाओगे तो ज्यादा दिक्कत होगी. तो इट्स बेटर कि अपना कैरियर तब चूज करें जब वो एटलीस्ट कुछ चीजें रियलाइज कर ले. ग्रेजुएशन में जाए, ग्रेजुएशन से पहले थोड़ा ब्रेक ले, प्रिपरेशन करे डिफरेंट टेस्ट की, अंडरस्टैंड कि आपका किसमें, इन केस लाइक डिफरेंट पीपल, हर इंसान के ना अलग ट्रेड्स होते हैं. कई लोग काफी एक्सट्रोवर्ट होते हैं तो उनके एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटीज के हिसाब से काफी सारे कोर्सेज हैं जो पिक कर सकते हैं. कई लोग एनालिटिकल होते हैं. तो देयर आर काफी टाइप के टेस्ट ऐसे भी हैं जो 10th के बाद आप दे सकते हैं अगर आप एक उस अपने आप को अंडरस्टैंड नहीं कर पाए हैं. वरना अगर आप देखेंगे, आप 5th या 6th क्लास के बाद आप एक बच्चा अपने आप को अंडरस्टैंड करना शुरू कर देता है कि उसका इंटरेस्ट किसमें है. उसका हिस्ट्री में इंटरेस्ट है, उसको ज्योग्राफी में इंटरेस्ट है, वो एनालिटिकल है, वो बायोलॉजी की तरफ ज्यादा जाता है, वो कम्युनिकेशन में अच्छा है. तो अगर मैं ना आंसर ना आपको ये 9th और 10th के बाद नहीं मिलेंगे. ये थोड़ा सा हमें एज अ पेरेंट और एज अ एल्डर, ये थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है कि हम एक स्टेप बैक लेके थोड़ा सा पहले मॉनिटर करना शुरू कर दे कि उनका इंटरेस्ट किस तरफ है. अगर मैं इसमें थोड़ा सम अप करूं, तो आई थिंक आवर फोकस इज दैट पीपल शुड नॉट बी क्वालिफाइड, दे शुड बी एजुकेटेड. So there is a difference in being qualified and being educated. So I think qualification तो आपके पास कितनी भी आ सकती है, but I think education is something which doesn't define, कि आपके पास degrees कितनी है. It is altogether different ball game, right? This also reminds me one of the statement जो कि मैंने recently पढ़ा था. Education is not for the rich, it's for the other, the wise one. तो ये actually statement it make much more sense because जैसा करण ने ही start किया था statement कि बॉस आज के डेट में अगर YouTube है, the problem is भेड़-चाल के चक्कर में होता है कि सबके सबको डिग्री चाहिए. Despite the fact वो चाहे because they are, मैं खुद बैंगलोर में रहता हूँ, मुझे पता है for a matter of fact ये लोग यहाँ पे भर के इंजीनियरिंग करके आते हैं and then again they are doing some language courses to get a job. So it's again a spend of somewhere close to 2 lakh, 3 lakh, and these institutes are flourishing on the basis of के boss आपको मैं ट्रेनिंग दूंगा 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, and then they are flourishing on their businesses for the next 1 year, 2 years, so on and so forth. So yeah, so when you talk about the personalized need or personalized counseling, is it totally based on the counseling with each individual, or there is a certain parameter basis on which you assess both professional and the students from the learning route per se? अगर मैं पूछूं तो. Okay, would you like to answer, Karan? Yeah, certainly I can. In this, see, we have different parameters on which we actually understand the person. See, first of all, what we understand is what kind of career trajectory. चलो ठीक है, अगर हिंदी में बताओ तो अभी तक उन्होंने एक ना किसी, चलो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, किसी महान इंसान ने ये कहा है कि अगर आपने किसी इंसान के बारे में जानना हो तो ये मत देखिए उसने क्या किया है, ये देखिए क्या वो करना चाहता है. अब तो सबसे पहले तो ये देखने से पहले ये देखना चाहिए कि वो अभी तक आया कहाँ से है, कि उसकी जर्नी क्या रही है.
सेकंड थिंग, वो अभी कर क्या रहा है, व्हाट काइंड ऑफ प्रोफेशन ही इज इनटू, व्हाट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस उसके पास किस चीज का है, और दूसरी चीज कि वो क्या करना चाहता है और क्या वो कर सकता है जो वो करना चाहता है कि नहीं। सी, मैं या मेरी टीम कोई नहीं होती बताने वाली कि वो कर सकता है, पर एक होते हैं परसेंटेज, अगर एनालिटिक्स में जाएं कि यार इतने परसेंट चांस है कि ही मे सक्सीड, इतने परसेंट कि ही मे नॉट सक्सीड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी डू इज, आप हमारे समझना पड़ेगा कि लर्निंग रूट्स क्या है। लर्निंग रूट्स एक प्लेटफॉर्म है जहां पर आप आके मल्टीपल कोर्सेज ऑनलाइन के देख सकते हैं। पहली बात है उनकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अच्छी बात यह है कि वी डू नॉट प्रमोट एनी यूनिवर्सिटी, तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो एक अनबायस्ड गाइडेंस देता है। तो अगर आप साइट पे जब आप जाते हैं तो वहां पर ना एक छोटा सा क्वेश्चनियर मिलता है आपको, दैट अंडरस्टैंड्स आपकी रिक्वायरमेंट्स। जब वो क्वेश्चन करते हैं तो उसके बाद कुछ कॉलेज रिकमेंड करता है वहां पर वो, और साथ ही साथ वहां पर एक बटन रहता है जहां पर आप क्लिक करके उसी टाइम काउंसलर से वीडियो कॉल या फिर आप जो है उनसे फोन पे बात कर सकते हैं। सी, हमारा आइडिया एक ओपिनियन बनाना नहीं है, क्योंकि ओपिनियन बनाने वाले आपको बहुत सारे ऐसे कंपनीज होंगी जो एक ओपिनियन बना के देती है कि देखिए ये प्रोग्राम आपके लिए सही है। हम क्या करते हैं, हम आपकी अंडरस्टैंडिंग लेते हैं, हम आपको सूटेबल ऑप्शंस देते हैं कि जो आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली, प्रोफाइल एज इन कि आपके कैरियर, कितना आपको कैरियर हो चुका है, कितना आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है, किस कंपनी, किस तरह के इंडस्ट्री में आप काम करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम आपको कुछ सजेशंस देते हैं कि आपको ये सजेशंस आपके पास हैं। नाउ एट द एंड ऑफ द डे द फ्री विल स्टेज इन द टर्म्स ऑफ द पर्सन हु इज इंक्वायरिंग व्हिच कोर्स ही वांट टू गो अहेड विद। पर हाँ, शायद से जैसे मैंने आपको कैरियर स्टार्टिंग में कहा था कि अगर आपके पास टाइम नहीं है और आप एक ऐसा प्रोग्राम करना चाहते हैं जो आप वीकेंड्स में कर सकें, तो फिर शायद से आपको ऐसे इंस्टीट्यूट में एनरोल होने की जरूरत नहीं है जहां पर आपको हर दिन ऑनलाइन क्लासेस लेनी पड़े, क्योंकि वो आप कर ही नहीं पाएंगे। एक तो ये पैरामीटर हो गया। दूसरा, अब कोई स्टूडेंट है या कोई अपना वर्किंग प्रोफेशनल है एंड ही वांट टू हैव एन अंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग एआई और समथिंग रिलेटिंग टू टेक्नोलॉजी, अब वहां पर वो नेसेसरी नहीं है कि उसको डिग्री ही दी जाए। कई बारी आप सर्टिफिकेशन से भी आप वो चीज सीख सकते हैं, राइट? तो our intent is to understand people, and that is the reason why majority of people who come across through our website are through references. Okay. Over the period of time is we have a lot of people, majorly of our student enrollments, if I say around more than 30 to 35% are done through references only. That who has given those references? जो लोग हमारे साथ प्रोग्राम करते हैं, and the point is this, we do not leave people in the midst कि उनकी जब हमने उनकी enrollment university से करवा दी and then we leave the people. What we do is we help them to complete the program so that at the end of the day the whole calculation of our what I can success is being judged by how many people have passed across through that programs. Not how many people have enrolled in these programs. So इसी पे मेरा follow-up question ये है. The reason it's not about rather I wanted to understand the USP with respect to value proposition. So जब मैं अगर बात करूँ वेदांतु की, मैं बात करूँ अगर अनअकादमी की, मैं बात करूँ अगर different courses अनअकादमी, Udemy हो गया and so on and so forth. अगर मैं गलत नहीं हूँ, so almost सारे courses claim करती है that they have a dedicated counselor and then they try not to leave them in between and so on and so forth. In the entire pura scenario mein, not that I'm putting it down, but at the same time I want to understand where does learning route ki ek USP stand out hoti hai. Before you answer, I'll give just an ending statement in it. See, first of all, Upgrad, Vedantu, right? We are not these competitors. They are not platforms. See, they are not platforms where you can get all the courses. We are a platform. आप अगर learning routes में जाएंगे, आपको वहां पर Upgrad के courses की calibration भी मिलेगी, वहां पर आपको कुछ अनअकैडमी के कोर्सेज की कैलिब्रेशन भी मिलेगी, वहां पर आपको यूनिवर्सिटीज जो इंडिया में ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज है उनकी कैलिब्रेशन भी मिलेगी उनके प्रोग्राम्स की। तो इट्स दे आर नॉट अ मार्केट प्लेस। सी, आपको आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड द कांसेप्ट ऑफ अपग्रेड, वेदांतु, अनअकैडमी, दे आर नॉट द मार्केट प्लेस। वी आर लाइक अ मार्केट प्लेस वेयर यू कैन लुक फॉर एनी ऑफ द प्रोग्राम्स। यू कैन कंपेयर इवन अपग्रेड प्रोग्राम्स विद यूनिवर्सिटीज। यस सूरज। So I'd like to थोड़ा सा मैं इसको ब्रेकअप करने की कोशिश करता हूँ, बिकॉज आई अंडरस्टैंड वेयर यू कमिंग फ्रॉम। काफी लोगों के ना मन में ये क्वेश्चन होता है कि यार एडटेक इंडस्ट्री दैट्स अ जनरल टर्म, एडटेक इंडस्ट्री, बट आई विल बाइफरकेट दिस एडटेक इनटू 2-3 phases. ओके, सो वन इज जिसका जो सबसे बड़ा केस स्टडी हम लोग आज की डेट में एज अ फेलियर और प्रॉब्ली एज अ केस स्टडी लेके चलते हैं, बायजूस, राइट? बायजूस हो गया, फिजिक्स वाला हो गया, वेदांतु हो गया, देन देयर आर खान अकेडमी हो गया। सो ये वो आपके कुछ ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो K-12 सेगमेंट में ऑपरेट करते हैं। these कंपनीज दे वर्क इन K-12 व्हिच इज 10th and 12th, राइट?
तो अप टू वो आपका आता है K-12 सेगमेंट, एंड देन आता है आपका प्रोफेशनल एजुकेशन, जहां पे individual organizations they curate a program in addition in participation with the university like upgrad, and then आते हैं आपके पास इंडिविजुअल कॉलेजेस, जैसे इंडिविजुअल कॉलेजेस अपने प्रोग्राम को बूस्ट करते हैं, एंड देन आते हैं आपके पास प्लेटफॉर्म्स which are technologically driven certification, who provide certification programs like Unacademy, or there could be simply learn हो गया आपका, simply learn हो गया. So these are certification program. अब जैसा कि आपने ये truly said that everybody says हमारे पास counselors there, we give you this man. Obviously everybody is subjected to say like this only. अगर मैं किसी से बात करूंगा तो मैं बोलूंगा यार मैं अच्छा हूं, वो खराब है शायद ना बोलूं, पर मैं बोलूंगा मैं अच्छा हूं. बट यहाँ पे we do not have any program which we offer to student. We do not invest our tech onto designing a program, because there are already too many programs and too many companies which are actually doing a fine job. But what we do is we make sure, अब आज की डेट में let's assume आपको एक सर्टिफिकेशन करना है डिजिटल मार्केटिंग में, बिकॉज अगर मैं दो प्रोफेशन पिक करूं, डिजिटल मार्केटिंग एंड प्रॉब्ली डेटा साइंस, राइट, टू मोस्ट डिमांडेड प्रोफेशन these days, अलावा और भी है, but these let's take two examples. Now digital marketing, if I have to search, probably when I search on internet I'll find lot of colleges. अब यहाँ पे private bodies भी हैं, यहाँ पे government bodies भी हैं, यहाँ पे individual players भी हैं, यहाँ पे free courses भी हैं. Now if you check on our website you'll find private bodies, you'll find government bodies, you'll find colleges, you'll find free courses also. If somebody now Google के अलग फ्री कोर्सेज हैं, LinkedIn के अपने फ्री कोर्सेज हैं, गवर्नमेंट के आपके स्वयं के डिफरेंट कोर्सेज हैं, कॉलेजेस के आपके पेड कोर्सेज हैं. नाउ इफ आई एम नॉट एबल टू buy probably 50,000 or a 1 lakh rupees program into digital marketing, and I want to learn just to see whether I can do it or not, and I'm okay to take free courses, so probably वो वहां जाके गवर्नमेंट के प्रोग्राम से चेक कर सकता है. और उसके लिए उसको ना, अगर मेरे को पता ही नहीं है कि यार कितने प्रोग्राम्स कहाँ पे होते हैं, बिकॉज देयर आर 10,000 प्रोग्राम्स, इफ आई हैव टू टेल यू मोर देन दैट. अब बीइंग अ स्टूडेंट, इफ आई कैन गेट अ कंपैरिजन, एंड जो करण ने लास्ट स्टेटमेंट में बात की थी कि दैट वी हैव अ क्वेश्चनर, सो दैट इज नॉट अ रैंडम क्वेश्चनर, दैट इज अ AI ड्रिवन स्मॉल क्वेश्चनर व्हिच इज ड्रिवन बाय AI, जिसमें एज पर देयर आर फ्यू सेट ऑफ क्वेश्चन, ऑब्वियसली कंसीडरिंग द साइकोलॉजी ऑफ अ स्टूडेंट, वो क्वेश्चनर आते हैं, अकॉर्डिंगली वी सजेस्ट देम ऑल द ऑप्शंस. इट कुड बी अ ओवरसीज प्रोग्राम, it could be a free certification, it could be a long term program, it could be a full time a part time program, like, or it could be a pathway program. When I say pathway program, could be 1 year in India online, 1 year in abroad with some other good business school. So it's going to be a competitive platform जहां पे बच्चा एक ऑप्शन के लिए नहीं, वो सारे ऑप्शन के जा सकता है. Because when you say, everybody says हम अच्छे हैं, then we actually tell them, okay, these are the grounds, these are parameters on which you can actually evaluate which business school actually suits your requirement. Now जो FAQ होता है, normally I've decoded this अपने टर्म्स में. FAQ is frequently asked questions. आप कुछ भी चीज हम करते हैं तो FAQ सबके पास होते हैं, right? Now when I talk about this industry, एक बच्चा अगर लर्नर है तो लर्नर के FAQs क्या होने चाहिए? F for flexibility, A for approvals and acceptability, and Q for quality. So अगर ये तीनों चीजें उससे मिल रही है ना, then I think it's a good to go program. Come again with the F for flexibility, A for flexibility, A for acceptance and approvals, and Q for quality. So if he's getting a program which is quality wise good है, approvals और acceptance है industry में, और probably flexible है कि working professional करना चाहे, एक fresher करना चाहे, या probably anyone in need. So I think if these 3-4 parameters are justified or fulfilled, then I think that's a good program for that individual. True. Okay. So precisely, अगर मैं एक one of the line that also summarize कि आप किसी कोर्स को endorse नहीं करते हो. One. True. Second, as Karan has mentioned, it's a marketplace rather than you are not tying up with someone. But at the same time, if somebody wants to promote their courses, they can promote. It's not gonna be other way around. Yes. They can come like. Whatever is the value rather than the whole program. So our value delivery is the counseling and the guidance part, and the bifurcation between the different universities that we deliver and that we provide to the students. Yes. But if let's take a scenario. If let's assume you being a student, you've called me for probably a consulting, right? So we are talking, हमने बात करी, आपने अपना मुझे problem case बताया कि ये problem case है, my budget is this, मुझे इतना flexibility चाहिए और ऐसा मेरा schedule रहता है. And then probably if you ask me, so Suraj, tell me, as per your experience, which one should I decide now? Because now you know my case,
and then if I tell you, okay, as per your understanding, probably this could be the right option for you. तो अगर उसको endorsement कह रहे हैं तो probably yes, that is something what we do. But if you ask me something personally कि नहीं आप यहाँ चले जाओ because we have been pressurized by colleges, तो वैसा case नहीं है. If you see, there are more than 100 colleges in India जो approved है, so all the colleges have been listed. And उसके और कुछ colleges ऐसा भी we are in good terms with them. कुछ colleges हैं जिससे हमारी बात नहीं है, but again we have the information. If somebody wants to go for the college, उनकी college की website पे पूरा direction जो होता है कि आप कैसे process है, we can actually take you through the entire process कि out starting from A point to point B. Correct. Yes. Suraj, इसी पे मैं एक सवाल था, क्योंकि since we are talking about now specific to the colleges and then courses, there is a rampant, I don't know to call this a malpractice, but जो कि मैंने personally notice किया, and frankly बताऊं तो बायजू ने market की पूरी XYZ कर दी है. YouTube पे आप देख सकते हैं, अभी तक है काफी सारी वीडियोस. हाँ, so जैसा मैंने सुना है, इसी पे मेरा एक सवाल था, and that has been actually I myself have heard about it, and the same time जैसा मैंने nephew का example लिया था, उसने भी बताया था. So बायजू क्या करता था? It also comes as a sort of assessment before proposing any sort of courses. अगर बच्चा 9th standard में है तो उसको 10th के assessment देगा to degrade them से कि भैया आप solve कर ही ना पाओ, तो उसके basis पे वो courses propose करना शुरू कर सकता है. That's one thing. Second, I have also seen with one of my close friend जो कि कुछ counseling करने की कोशिश कर रहा था because he is trying for the MS from the Ireland or the abroad Nordic country. वहाँ पे भी कुछ एक specific scenarios create करते हैं, not because he is fit or not, is because to promote the private universities. Boss, because I'm sure you guys must be knowing कि यूरोप में especially बहुत सारे public university where tuition is waived off. But at the same time, कोई भी ढंग की counseling platform, they do not promote the public university. क्यों? क्योंकि उनका धंधा वहां से नहीं आता है. अब यहाँ पे आते हैं from the learning route perspective. Now, this can be used everywhere and anywhere. So how legitimate that you guys may be proposing? Not that I'm challenging, but I wanted to understand from the reality perspective, because this is a business. जैसा करण ने कहा, धंधा है यार, बात खत्म. But at the same time, from the legitimacy perspective, because tweaking one or two questions does not make a major difference. But in terms of selling the higher courses or high value courses becomes very easier there. See, I think for us, इसमें ना थोड़ा सा ट्विक लगे, जैसे आपने you said कि बायजूस ने वो 10th का ग्रेड का असेसमेंट दिया so that वो थोड़ा डिग्रेड करो ताकि बच्चा थोड़ा सा people fear what they don't know, right? तो वो normally scenario होता है. But इसमें क्या होता है, जब वो उसको fear दे रहे हैं and when they are counseling, then they are selling their own programs. But what we do is हम लोग उनको consulting का, we charge them for consulting. If they do not want the consulting, they can review the website, they can check the options, they can take up any program, and and they don't have to inform us. But if they take consulting, the consulting starts from 500 to 5,000 depending upon the kind of programs, the kind of counselors they want to go for, right? The mentors they want to go for. So that is something. अब उसमें हमारे पास ऐसा कोई program नहीं आता curated so that हम उसको डर बना रहे हैं और अपने program में enroll करा रहे हैं. If tomorrow Learning Roots come up with a program, then probably this case might be related to us. But if I talk about Byju's, so that's an extreme case where we are discussing. So वो K-12 segment को मैं थोड़ा सा side रखता हूँ. But when I talk about professional education, that's become a different thing. If I have to give you relativity, then probably Policy Bazaar. Policy Bazaar could be an option. A good case to relate with, I guess, because you can go and you can check all the insurance, or maybe Sky Scanner. When you go to the website, you get to know, okay, GoIbibo, Make My Trip, Vistara, Indigo. There are a lot of different, websites, travel industry. If you see, there are a lot of competition, and there are a lot of companies, who are actually existing in this space. So आप कभी देखोगे Sky Scanner में, what they do is they give you all the comparative analysis, and then the user, he can go to any of the website just to see, अच्छा यहाँ पे price कम है, चलो मैं Make My Trip से कर लेता हूँ. So इसमें Sky Scanner is not actually promoting them कि आप यहाँ पे जाओ until unless they have an internal deal. Okay. Right? देखिए सर, अब हर बिजनेस का ना, the end of the goal of business is first of all to generate revenue first, and now there are different see, आपने ना जो क्वेश्चन पूछा है, it is not related to any company, it is a very ethical question. See, it depends upon the person who is running the business. As far as if I tell you, when I am concerned or my management is concerned, when we were working at the very cool, see, this company has not been, brought to around the situation which is into one night. It has taken a time, a rough years of 7 years.
So, and it's started from the very basic when 3 people were working, right? So when we were working, we used to make sure that, because see, we had a problem, we had an issue, and we know we have a solution for that, and we were good at it, right? So सबसे शुरू से हमने कोशिश की हम एक एथिकल और एक मोरल कंस्ट्रक्ट को अपने साथ रखें, एंड दैट हैज बीन इम्बाइब्ड इन द कल्चर आल्सो, राइट? क्योंकि कहीं ना कहीं आप अगर एक ब्रॉडर व्यू में देखते हैं तो ये बात करना बहुत आसान होता है, अरे ये तो ये करते होंगे, ये ऐसे करते होंगे, क्योंकि बातें बन जाती है। अब बायजूस कितना गलत रहा है ये बायजूस को पता है और हमें भी पता है, लेकिन बातें कुछ ज्यादा भी बन गई हैं। अब जो मिस्टर बायजूस के जो ऑनर हैं, उन्होंने जब शुरू किया होगा इस आइडिया से तो नहीं शुरू किया होगा दिस विल हैपन इनटू माय ऑर्गेनाइजेशन, बट इवेंचुअली होता क्या है, व्हेन आप जब थोड़ा सा मैनेजमेंट एक बहुत बड़ी कंपनी बन जाती है, देन योर कल्चरल वैल्यूज एंड सर्टेन नॉर्म्स हैव टू बी अबाइड बाय एंड दे हैव टू बी फॉलोड टू द वेरी बॉटम, जो कि बायजूस में नहीं फॉलो हुए। द एथिक्स एंड द कोड्स वर नॉट वेरी एट द लोअर मैनेजमेंट लेवल, अगर आप देखेंगे, या काफी सारी चीजें जो हमें देखने में आई हैं। तो what we do is we have certain moral construct that we have imbibed in the company की guidance की एक certain values जो होंगी, we will not be promoting in terms of कि अगर मान लीजिए कोई यूनिवर्सिटी से हमारे रिलेशन अच्छे हैं या यूनिवर्सिटी से खराब हैं, क्योंकि we are in the industry and we meet a lot of people, so it doesn't come across in our counseling that we have to make sure, because being from a very middle class family, me and Suraj, a lower middle class family, in fact, we are very much sure that if a person is spending a single penny with us, then he should get value out of that, and that is I am very, but yes, आपको एक वो 100% एक्यूरेसी से आप नहीं काम कर सकते, वो छोटी मोटी कंप्लेंट्स होती है, और जब भी कंप्लेंट्स ऐसी आती है जहां पर एक पर्सनल इंटरेस्ट के लिए, बिकॉज सी आवर काउंसलर्स हैव अ लॉट ऑफ वैल्यू दीस डेज, लर्निंग रूट हैज अ सर्टेन ब्रांड नेम वेयर पीपल इंक्वायर एंड दे आस्क फॉर क्वेश्चंस, एंड इफ वी कम अक्रॉस सर्टेन केस जहां पर किसी ने थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे किया होता है, वी हैव अ वेरी स्ट्रिक्ट अप्रोच रिगार्डिंग दिस, बिकॉज दिस इज समथिंग व्हिच इज द वैल्यू व्हिच यू आर डिलीवरिंग एंड वी कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट। लर्निंग रूट्स आज तक भी एक इन्वेस्टर्स के पैसे से नहीं बना है। Learning Roots has been made through its own roots, and it's an organic organization till now, and the only thing which have contributed is first our employees, and second is the people who have trusted on us. So these things are something which अभी जहां पर हम एक भी थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं in terms of value delivery. True. Good. So the reason मैंने ये सवाल किया था is not to put it down in some other way around, rather it's from the legitimacy per se, because one is edtech industry, if you look at precisely, has, I don't want to call it as a gone down, but the reputation has been hit very badly, not only with the Byju but in the last, especially COVID के टाइम से में it's like boom हुआ, उसके बाद जैसे COVID बंद हो गया फिर blast हो गया, it exactly went likewise. आपका Vedantu was to a Byju गया, and then there were a bunch of scenarios. So in fact, I know for a matter of fact, a lot of VCs are also hesitant investing in going after the edtech industry. But irony ऐसी है कि education एक ऐसा segment है that still needs a right mindset and the principle to resolve the issues, because अभी सर just a beginning, sorry to cut you out, see it's evolve होने में टाइम लगेगा, it's just a beginning। ऑनलाइन एजुकेशन को पेंडेमिक के टाइम से एक्सेप्टेबिलिटी मिलनी शुरू हुई है, तो अभी गवर्नमेंट ने, इफ वी टॉक अबाउट गवर्नमेंट, अभी तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज बहुत रिफाइन होनी बाकी हैं और हो रही हैं। अगर आपको थोड़ा सा आइडिया है, एजुकेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर में यूनिवर्सिटीज में काफी सारे चेंजेस लाए गए हैं पिछले 1-2 सालों में, काफी ऐसी बड़ी यूनिवर्सिटीज जिनको 1-1 साल के लिए बैन लगा है बिकॉज ऑफ द एजुकेशन पार्ट। तो बहुत सारी चीजें हैं जो हो रही है, इट्स जस्ट अ बिगिनिंग। और जहां तक रही एक पेंडेमिक की बात, पेंडेमिक में देखिए, कई पेंडेमिक में जो हुआ वो लोगों ने, अब होता है ना कि पीपल दे वांट टू जनरेट रेवेन्यू रेदर देन प्रॉफिटेबिलिटी एंड वैल्यू डिलीवरी। अब वो पेंडेमिक एनकैश तो कर लोगे, वो सारा आप प्रॉफिट निकाल लोगे, बट द पॉइंट इज दिस, जितनी आपने इन्वेस्टमेंट कराई है अपनी कंपनी में वो वापस भी तो देनी होगी। तो वो एक लॉन्ग टर्म प्रोग्रामिंग काफी नहीं होती है लोगों में, या फिर एक स्ट्रेटेजी में, या फिर दे हैव देयर इजी आउट ऑप्शंस और वो ऑप्शंस कभी फेल हो जाते हैं, तो ऐसी चीजें दिखती है मार्केट में। बट यस, इट इज स्टिल अ बिगिनिंग। आई थिंक देयर इज अ लॉट फॉर ऑनलाइन एजुकेशन इन इंडिया व्हिच इज पेंडिंग। But I would like to add on into this. I think we have taken a wrong example. जैसे बायजूस हम बात करते हैं, because Indians हम थोड़ा सा critics ज्यादा होते हैं,
Rather, if I see, Khan Academy or physics wala, so I think they have been doing absolutely amazing job. आप उनके verticals देखोगे, they are into every space into edtech industry. You talk about K-12, you talk about professional, you talk about schools, colleges, so physics wala have been entering into every space. In fact, there are more companies like this. अब similarly अगर मैं बात करता हूँ एजुकेशन, जैसे करण राइटली मेंशन कि जो गवर्नमेंट के जो नॉर्म्स अभी लास्ट 2-3 years में आई हैव पर्सनली सीन, सो दे हैव एक्चुअली डिबार्ड टॉप यूनिवर्सिटीज आल्सो फॉर 1-2 years बिकॉज दे वर नॉट अबाइडिंग नॉर्म्स. आज के डेट में जो हमारा ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है, दैट इज मोर देन 30%, दैट इज इंक्रीजिंग 30% एवरी ईयर बाय ईयर आफ्टर पैंडेमिक. सो जो एक सेगमेंट हिट हुआ एडटेक इंडस्ट्री का, दैट डजंट डिफाइन द एंटायर एडटेक इंडस्ट्री, राइट. और अगर आप देखेंगे तो फुल टाइम कोर्सेज जैसे हम करते थे, तो आज के डेट में जो पॉपुलेशन है हमारे पास, सो वी डिड नॉट हैव इनफ कॉलेजेस जो एक्चुअली बच्चों को एनरोलमेंट देके उनका एकेडमिक्स निकाल सके. नाउ गवर्नमेंट हैज कम अप विद दिस पॉलिसी कि नाउ यू कैन टेक एडमिशन ट्वाइस इन अ ईयर फुल टाइम. जो साल में एक बार आप एडमिशंस लेते थे, नाउ यू कैन टेक ट्वाइस अ ईयर, एंड दैट टू फॉर फुल टाइम प्रोग्राम. बट सिमिलरली व्हेन आई टॉक अबाउट ऑनलाइन प्रोग्राम्स से courses starts from 60,000 to 60 lakhs also. Now if I tell you that there are some online programs which we have which charges like 30 lakhs rupees, 35 lakhs rupees for a 1 year program, जितना तो IIMs भी चार्ज नहीं करते फुल टाइम के लिए. And then there are people who actually take up these online programs जिसमें 30 lakhs उन्हें spend करना है. So I think there are a lot of colleges, lot of changes, और जो changes हुए हैं that are positive, that has positive impact. So being an optimistic person, I think I would say एक negative sentiments obviously बात है market में आया जरूर है, because we have seen कुछ नेगेटिव होता है ना, तो उसको और हम लोग शेयर करते हैं और एक्सटेंड तक जाते हैं, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं. बट वी हार्डली टॉक अबाउट इफ यू टॉक अबाउट फिजिक्स वाला, आप किसी से पूछेंगे बायजूस का केस स्टडी, सबको पता होगा, हाँ यार ऐसा हो गया वैसा हो गया. बट व्हेन यू टॉक अबाउट फिजिक्स वाला, आपको पता है फिजिक्स वाला क्या क्या करता है, तो लोगों को पता होगा हाँ यार वो सेम बायजूस जैसा कुछ करते हैं. बट फिजिक्स वाला बहुत कुछ करता है, बिकॉज वी हैव नेवर स्पोकन अबाउट on that perspective. So that is just one segment which has a set and bad example for the entire edtech industry, but that is not the only edtech industry. Now upgrad has been doing a phenomenal job. If you see, there are other companies also into this space. I personally have seen universities transiting in last 3-4 years, which were actually following a very traditional way of delivering education कि हाँ full time से आपको एजुकेशन मिलेगी. बट व्हेन आई हैव सीन दीज यूनिवर्सिटीज ट्रांजिटिंग इनटू द ऑनलाइन प्रोग्राम्स, दैट टू विद फुल केपेक्स एंड फुल स्विंग, एंड उसमें उनका एनरोलमेंट भी आया है, 2-3 years की जर्नी भी हमने देखी है. तो आई थिंक वो एक अपने आप में एक सक्सेस स्टोरी निकल के आता है कि नॉट ओनली विद वन, देयर आर मल्टीपल कॉलेजेस एक्चुअली व्हिच हैज प्रूवन ओके ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो जो आपका एवरी ईयर इट शुड इंक्रीज. तो जितना स्टूडेंट बेस है हमारे पास, फुल टाइम कॉलेजेस जो हमारे पास इंस्टीट्यूशंस हैं, वो उस एपेटाइट को फुल नहीं कर सकते. एंड फॉर दैट गवर्नमेंट इज एक्चुअली सपोर्टिंग ऑल द कॉलेजेस इन टर्म्स ऑफ ऑनलाइन, यस, बट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द क्वालिटी पार्ट. एंड दैट इज द रीजन व्हाई दे हैव बीन ब्लैकलिस्टिंग कॉलेजेस लाइक जिनका स्टैंडर्ड्स एसओपीज प्रॉपर नहीं है. दे हैव बीन ब्लैकलिस्टिंग दोस कॉलेजेस एंड डिबारिंग देम आउट ऑफ द मार्केट. अगर आप देखें, पहले मैं नाम नहीं लूंगा, बट कुछ कॉलेजेस हैं जो काफी स्ट्रॉन्ग बेस अपने पास रखते थे, बट नाउ दोस कॉलेजेस वर बीइंग डिबार्ड, उस कॉलेजेस को डिबार्ड किया गया था 10 सालों के लिए. कुछ कॉलेजेस और है जो बीटेक डिस्टेंस लर्निंग में देते थे, बिकॉज गवर्नमेंट पॉलिसी सेज बीटेक, एमटेक, पीएचडी, एमफिल वो आप डिस्टेंस में नहीं कर सकते हो. लेकिन आज के डेट में आप देखोगे तो देन गवर्नमेंट इज आल्सो थिंकिंग कि हम एमटेक को भी कैसे लेके आ सकते हैं एक ऑनलाइन प्रोग्राम्स में. आप समझ रहे हैं, जो पहले टेक्निकल कोर्सेज होते थे वो आप कर ही नहीं सकते थे ऑनलाइन मोड में, बट नाउ गवर्नमेंट इज थिंकिंग ऑन दैट पर्सपेक्टिव कि यार एमटेक को भी हम कैसे लेके आ सकते हैं ऑनलाइन मोड में, जहां पे एटलीस्ट बच्चे को डिलीवरी क्वालिटी डिलीवर हो जाए. सो आई थिंक देयर आर फ्यू इनिशिएटिव्स व्हिच हैव बीन टेकन बाय द करंट चेयरमैन Mr. Jagdish. I think वो काफी पॉजिटिव साइन भी है. So being an optimistic person, yes, I would see the positive changes rather than focusing on the negative ones. And don't get surprised कि अभी कुछ आने वाले टाइम में एक और बिग यूनिवर्सिटी एक साल के लिए डिबार हो जाए ऑनलाइन प्रोग्राम देने से. हाँ भाई, अगर मैं ऐसे तो यूपी में, इनफैक्ट कर्नाटका में, महाराष्ट्र में बहुत सारे कॉलेजेस खुलते हैं, बंद होते हैं, खुलते हैं. मतलब इट्स अ विशियस साइकिल वाली चीज है. वी हैव बीन, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो यूपी में अलोन इंजीनियरिंग कॉलेज आर क्लोज टू 300+. Yes. और now colleges are fighting to भैया कोई तो स्टूडेंट्स आ जाओ. So they keep on hopping here and there कि भाई कुछ तो धंधा बने रहे. Because आज से 2-3 साल पहले, 2 साल पहले की बात है, 3 साल पहले की बात है, अराउंड 800 यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस इंक्लूसिव वो ब्लैकलिस्ट हो गए थे क्योंकि वो फ्रॉडुलेंट डिग्रीज बेच रहे थे. तो ये तो एक बारी सब 3-4 साल पहले हुई थी गवर्नमेंट के एंड से. वो भी होता है ना, पॉलिटिशियंस के पास ब्लैक मनी बहुत है. क्योंकि मैं नाम तो नहीं लेना चाहूंगा, बट आई नो फॉर अ मैटर ऑफ फैक्ट महाराष्ट्र में आई नो फ्यू इंडिविजुअल्स जिनकी पूरे कॉलेजेस ही बनी है ब्लैक मनी से. इंडिया में 70% ऑफ द कॉलेजेस आर ओन्ड बाय पॉलिटिशियंस. देयर यू गो. Okay.
So now since we're talking about the degrees in colleges, चूंकि आपका as a platform it works as a marketplace, ऐसा होता है कि because I have also saw कि IMA भी आपके लिस्ट में है, आपके कॉलेज that is there. कई बार ऐसा होता है कि कॉलेज try to influence your boss, I'm going to pay you this much and then you got to promote my courses and all. ऐसा कई बार होता है pressure that comes from the colleges. बहुत होता है, बिल्कुल होता है ऐसा. बट द पॉइंट इज दिस सर कि ऐसा करने लगूं तो मेरे पास हर दूसरे दिन ना एक अलग कॉलेज होगा जो अपने आप को बोलेगा मेरे को ऊपर डालो. सो दिस कांट हैपन. अगर ये हो गया, दिस फैशन हैपेंस, देन एवरी डे द कॉलेज विल बी पोइंग मच मोर ऑफ मनी टू डू दैट. बट सी, try to understand our major revenue stream is not from the colleges. Correct. Right. So that is why the reason why we have kept ourselves astray from all this clutter. Okay. Now, since we're talking about the online degrees, right? Online degrees and certificate. Now, this I'll try to give you the real perspective. Even in a city like Bangalore as well. क्या होता है? जब आपके पास कोई job openings आती है, right? Largely they look for the full-time degree. The moment I try to propose कि भाई मेरे पास online MBA degree है या फिर distance वाली degree है, they usually do not being considered as a genuine or पता नहीं, for some reason HRs are very hesitant to consider these degrees. Forget about it, I do not want to blame the HR as a category, but companies in general. You see कि ये एक perspective change हो रहा है. At the same time, how do you see this is actually impacting? Because frankly speaking, as I said it earlier, कि भैया education is not for the rich, it's for the wise one. Exactly. And online degree काफी अच्छे से fitment होता है उसमें, but at the same time, if you look at from the job perspective, I still do not get it a lot of opportunity. I'm talking about when I as in not I, but a lot of people do not get an opportunity. Why? Because they look for full-time MBA degree, and उसमें भी bifurcation होता है भाई. Okay, so since we are talking about it, there is also bifurcation with respect to. I remember मैंने एक job में apply किया था almost 5 साल पहले. So there is a company in गुड़गांव में है, मैं नाम भूल रहा हूँ, तक्षशिला. Okay, तक्षशिला एक मैनेजमेंट कंसल्टेंट फर्म है. उनके रिक्वायरमेंट कुछ ऐसे थे, आपके 10-12 में 90% से ऊपर, उसके बाद आपको IIT दिल्ली, बॉम्बे, खड़गपुर, कानपुर इससे होना चाहिए. उसके बाद आपको 2 साल का एक्सपीरियंस मैकेंजी या फिर BCG में होना चाहिए. उसके बाद यू शुड बी पास आउट ऑफ IIM ABC, देन ओनली यू कैन अप्लाई फॉर इट. भाई आप क्या ढूंढ रहे हो? मतलब मैं तो अप्लाई नहीं कर सकता फ्रैंकली स्पीकिंग, बट सच क्राइटेरिया इज एक्चुअली वन is somewhere in the it also creates a fear कि भाई, जैसे मैं भी अगर मुझसे कोई पूछता है कि भाई मैं MBA करूँ कि नहीं करूँ, मैं कई बार बोलता हूँ if you're gonna spend somewhere close, क्योंकि on an average MBA डिग्री का अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 15 लाख तो भाई ऐसे आज के डेट में मिनिमम फुल टाइम कोर्स के हैं. तो if you're not able to crack the IIM, it's better not to do it. Rather, or maybe premium top 30 college आप नहीं crack कर पा रहे, so better not to do it. You do it alongside your job. That's what I advise. But how do you see this is changing? Because you guys are the real example with respect to operating in edtech industry, and this is a real pain game. So I'll tell you one. Just me and both Suraj, we are not from any of the top business schools. And just to add you this thing, when we started this business, I never felt that we did our hard work because we were enjoying the whole process. Right. So see, इसका आंसर देने के लिए ना एक अलग से पॉडकास्ट और लग सकता है, to be very honest. But I'll ask Suraj to give this answer because he's very quick at these, answers. And ये आपका ना एकदम ये सही चीज है जो साइकी आपने बताई है. ये एक्चुअली रियलिटी है कि काफी कंपनीज, बिकॉज आई पर्सनली हैव सीन दैट आल्सो कि आप इससे होने चाहिए, आपका थ्रू आउट फर्स्ट डिवीजन होना चाहिए. तो ये होता था. But personally, what we have done is we have partnered with one of the best organizations in the country. I talk about Capgemini, we talk about American Express, we talk about Allison Technologies, we talk about LIC हो गया, Indian Army हो गया. In fact, we have personally conducted webinars and we have conducted what do you call it, study the online courses, workshops, जहाँ पे these companies, because every organization has a learning and development team, right? तो उनको budget allotted होता है that you have to make sure that your employees are learning and so that they can be more productive at their workplace. So we personally have conducted a lot of expos there, and जहाँ पे college companies को actually promote करती हैं कि आप employees को आप यहाँ से करिए course, we are going to be sponsoring it. So these terms could be different कि at times companies can sponsor, at times they can sponsor the partial fees, at times student can take up any program as per their own will. So जब expo लगता है ना तो ये companies के actually आते हैं. और कहने को ऐसा नहीं कि कंप्लीटली ये गायब हो चुका है, नहीं, ये साइकी अभी भी है लोगों की कि नहीं हमें तो वही चाहिए कि IIT यहाँ से हो.
आई एम अहमदाबाद, बैंगलोर, कलकत्ता या लखनऊ से होना चाहिए, आई एम कोझीकोड होना चाहिए, या फिर आई एम अमृतसर होगा तो नहीं चलेगा, आई एम रायपुर होगा तो नहीं चलेगा। तो ये अभी भी कुछ कंपनीज में है, बट अगर मैं देखूंगी फॉर्च्यून 500 कंपनीज में, टॉप 10 और 20 कंपनीज, सो आई डोंट थिंक सो दैट दे वुड लुक ऑन योर डिग्री कि आपकी डिग्री कौन से कॉलेज से आती है। इफ यू आर स्किलफुल, अगर आप में वो बात है, तो आई थिंक यू कैन इजीली क्रैक दैट इंटरव्यू टू। तो ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चेंज हो रहा है, बट आई थिंक इट विल टेक मोर टाइम, जहां पे ये आपका जो मेंटल बैरियर है ये खत्म ही हो जाएगा, जहां पे आई थिंक ये सब चीजें आएंगी नहीं। हाँ, पहले जरूर था कि ऑनलाइन को इतना वेटेज नहीं मिलता था, बिकॉज तब इग्नू चलता था। अगर 20 साल में आपको पीछे लेके जाओ 1980s में बीए आपकी बहुत सॉलिड डिग्री होती थी। बीए अगर किसी ने बीए कर लिया है या एमए कर लिया है, वो बहुत सॉलिड डिग्री होती है 1980s में। मैंने टॉक अबाउट माय फादर्स एजुकेशन उस टाइम पे, तो धीरे धीरे करके वो थोड़ी साइकिल चेंज हुई, फिर वो डिस्टेंस लर्निंग का वो इग्नू आना शुरू हुआ, लोगों को पता है इग्नू। अब आपको पता है कि दैट वाज अ गुड इनिशिएटिव, बट अगेन इट डिड नॉट ऐड एनी वैल्यू, इट वाज ओनली द क्वालिफिकेशन व्हाट वाज गिवन टू ऑल द स्टूडेंट्स। बट नाउ व्हेन आई सी गवर्नमेंट टेकिंग इनिशिएटिव इन टर्म्स ऑफ अदर प्रोग्राम्स, जहां पे उनको वो स्किल्स सिखा रहे हैं जो शायद पहले कभी इग्नू में कभी सिखाई ना गई हो, लेकिन कुछ उनके पोर्टल्स में ऐसे स्किल सेट्स हैं जो एड ऑन हो रहे हैं, देन आई थिंक गवर्नमेंट देमसेल्व्स आर प्रमोटिंग, एंड इन फैक्ट लॉट ऑफ कंपनीज जब वो इतना स्पेंड करते हैं एनुअली, यू हैव नो आइडिया। लाइक इफ आई टॉक अबाउट वी कंडक्टेड वन इवेंट विद Capgemini, so it was not for one location, it was pan location, so our counselors were there in every part of the offices, wherein all the levels, starting from their 1 2 3 4 5 6 level, people with 20 years of work experience, probably a director is joining, a senior manager is joining, a fresher is joining the program, online program. And if you see similarly all the tech companies in these days, so tech companies do not promote such events. Why? Because they understand कि अगर मेरा कोई tech का बंदा है, जैसे TCS हो गया फॉर एग्जांपल, TCS के पास अपने इतने प्रोग्राम्स हैं खुद के डिजाइन शॉर्ट टर्म प्रोग्राम, दैट यू डू दिस एंड देन प्रॉब्ली विल escalate you or probably promote you to some different level. तो वो एक साइकिल पहले थी, बट यस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम काफी चेंज हुई और आने वाले टाइम पे और भी चेंज हो जाएगी। इंटरेस्टिंग। सो इनफैक्ट ये जो मैंने आपको प्रॉब्लम स्टेट बताया, ये इससे मैं खुद ही इतना फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ कि अगर मुझसे कोई बंदा पूछता है या फिर बच्चा पूछता है कि भाई मैं क्या करूँ, मैंने कहा भाई चुपचाप 12 के बाद जॉब में आ जाए, जॉब के साथ साथ जो कोर्सेज करना है कर, दैट्स मच बेटर, यू विल गेन द एक्सपीरियंस एंड देन सेम टाइम यू कैन। One thing that I have also seen is, of course, this pedigrees जो हैं आपके जो Ivy colleges से, तो whether it's IIT, whether it's IIM, it certainly reap the benefit in a long term. But not everybody is able to crack those exams, and we got to accept the reality कि भाई नहीं हो रहा तो नहीं हो रहा, accept करो. And the same time, it's better you get a job, and then parallelly the way it happens in the Western countries कि आप 12 के बाद या फिर they also call it a pre-university (PU). So वहाँ पे उसके बाद आप immediately you get in a job and then you start exploring the field, because then you will start actually hitting the ground and then you know your interest area and then you start exploring the part. Because एक चीज also there's also one thing, जब आप job करके education करते हो ना, उसकी importance बढ़ जाती है, rather than 12 आप जब सीधा education में jump करते हो। So that is a human behavior। आज के टाइम में आप कोई ऐसी गेम खेलिए जो आप बचपन में खेलते थे, शायद से आपने इतनी सीरियसली ना खेली होगी, बट वंस यू ट्राई एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम स्टार्ट लर्निंग दोस थिंग्स, यू विल बी हैविंग अ वेरी डिफरेंट अप्रोच एंड यू विल वेरी इंटरेस्टेड लर्निंग दोस थिंग्स। सो इट्स अबाउट द मैच्योरिटी दैट वी गेट। एंड आल्सो क्या होता है कि जब हम कॉलेजेस कर रहे होते हैं, आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा, तो हम बहुत वरिड होते हैं कि यार हाउ विल आई गेट अ जॉब, मेरी जॉब कैसे लगेगी, बस ये इंटरव्यू क्लियर हो जाए, बस ये इंटरव्यू क्लियर हो जाए। तो हमें एक इंटरव्यू क्लियर हो जाए, चाहे वो कोई भी पैकेज हो, अगर एक एवरेज बिजनेस स्कूल है तो पर्सन वुड बी वेरी कीन कि वो 4 लाख का हो, वो 10 लाख का हो या 8 लाख का हो, बस मुझे जॉब लग जाए। लेकिन एज द मोमेंट ही स्टेप्स इनटू द कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट, तो वहां पे जो उसके आसपास का सराउंडिंग होता है ना, तो शायद उसको पहले एक जॉब के लिए भी स्ट्रगल हो, बट जो आसपास के लोग हैं ना, उसको तब समझ में आता है अच्छा मेरे पास 4 ऑप्शन और है, बिकॉज पीपल स्टार्ट टेलिंग देम यार आप यहाँ पे भी कर सकते हो, ये ऑप्शन भी है, मैंने यहाँ अप्लाई किया था। सो अकॉर्डिंगली तो योर सराउंडिंग, योर एनवायरमेंट आल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल in order to learn and to explore कि क्या क्या चीजें हो सकती है। तो सूरज, एक क्वेश्चन मैं ऑलमोस्ट सारे एंटरप्रेन्योर से पूछता हूँ, जो मैं आपसे भी पूछना चाहता हूँ। इफ somebody wants to explore a business idea within edtech, given the current scenario, what would be your recommendation? He should know the problem and he should understand technology. You should know the problem, you should understand the technology. Now, he should understand the problem in education, and he should be more he should be compatible with the technology part. अगर edtech में आना है तो tech को you cannot miss, and but you have to have that problem कि वो problem क्या है, because see for us if I tell you, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि ऑलरेडी इतने प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कोर्स क्यूरेट कर रही हैं, आज के डेट में भी बन रहे हैं, काफी ऑर्गेनाइजेशन क्यूरेट कर रहे हैं प्रोग्राम, अपने प्रोग्राम्स बना रहे हैं, बट सिमिलरली
उस प्रॉब्लम को ऑलरेडी देयर आर सो मेनी पीपल वर एड्रेसिंग. सो वी वांटेड एटलीस्ट वी शुड नॉट गेट इनटू द क्यूरेशन पार्ट. एटलीस्ट बेटर दैट वी बिल्ड अ प्लेटफॉर्म वेयर एटलीस्ट पीपल कैन कम एंड कंपेयर. सो यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट प्रॉब्लम एंड विद द लर्निंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ टेक्नोलॉजी. सो यस, इफ somebody is planning to get into edtech, so they should have a nice problem and understanding of technology. I think that makes a complete good blend. And how do you see this AI thing, jitna hype bana hua hai, is going to impact the entire education sector? I would not say. I guess it is definitely gonna be a support. Tech will always be, आप कह सकते हो complement करेगा हमेशा इस चीज को, but it cannot completely replace the education, because आज के डेट में बायजूस का अगर मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल वापस लेके चलूं, because we have been discussing a lot about बायजूस, तो अगर मेरा आज के डेट में if I have a kid, I would not want him to study online. Probably I would prefer that tuition अगर उसे करना भी है, he should get into a physical coaching or probably a tuition. जैसे अगर हमारे पास ट्रेडिशनल काफी सारे बंसल्स हो गया, रिसेंटली एलन हो गया हमारे पास, राइट. वो ट्रेडिशनल अप्रोच अभी भी चलता है जहाँ पे क्लासरूम फैसिलिटीज होती हैं. सो आई माई सेल्फ वुड नॉट वांट कि मेरा बच्चा आज की डेट में जाके ऑनलाइन लेक्चर्स ले, अंडरस्टैंडिंग ले. आई वुड वांट हिम टू गो टू सम सेंटर्स एंड डू इट फिजिकली. करेक्ट है. तो आज के डेट में अगर मैं बात करूं तो इट इज एक्चुअली ये केस भी वैसे ही आता है, बिकॉज बायजूस वाज वेरी मच एडवांस एज पर द इंडस्ट्री. जो करंट इंडिया क्या रेडी था उस चीज के लिए, इट वाज नॉट एक्चुअली. सो एआई या ऑनलाइन जो क्लासेस हैं या एआई का जो पार्ट है, ये डेफिनेटली आने वाले टाइम पे इट इज गोना बी मच मोर और उसको आप कह सकते हैं स्केल पे जाएगा, बट इट इज ऑलवेज गोना बी कॉम्प्लीमेंटिंग. इट कैन नॉट एलिमिनेट द ह्यूमन इंटरवेंशन. तो ह्यूमन इंटरवेंशन को कभी एलिमिनेट नहीं किया जा सकता. एंड पर्सनली इफ आई सी, तो आज के डेट में जैसे हम कंसल्टिंग करते हैं, लॉट ऑफ एआईज देयर आर लॉट ऑफ कंपनीज हु हैव बिल्ड टूल्स जहां पे वो कंसल्टेशन भी दे सकता है आपको, बट इमोशंस इज समथिंग व्हिच इज डिफिकल्ट, वो नहीं आ सकता. एंड इन बीइंग इंडियंस, आई थिंक वी आर इमोशनली ड्रिवन, नॉट एनालिटिकल. मोस्ट ऑफ द इंडियंस, आई वुड से. My final question to you is, in general, अगर मैं last 1 decade देखूं, that was more towards moving from the physical education to somewhere transition towards online degree, and the same time education का एक dynamic भी change हो गया, rather than just भेदचाल जो हमने खुद ही discuss कर रहे हैं engineering या फिर वो थोड़ा सा shift हुआ है. At the same time certification has got certain sort of legitimacy. At the same time also we started getting recognition with respect to skill as a skill. But True. With respect to next 1 decade, अगर मैं next 10 साल की बात करूं, what is one thing that excites you with respect to India's education sector? So what excites me is that एक tier 1, tier 2, tier city का बच्चा, that student can take a session from our international Ivy League business school in sitting in his hometown and with multiple amenities. उसको रेस्ट्रिक्शन नहीं होगा कि उसको अपने रीजनल कॉलेज में ही पढ़ना है, एंड दैट टू एन अफोर्डेबल प्राइसेस. नेक्स्ट 1 decade, दिस इज व्हाट आई एंटिसिपेट कि वो बच्चा शायद अपने होम टाउन में बैठ के वर्ल्ड के बेस्ट फैकल्टीज, वर्ल्ड के बेस्ट बिजनेस स्कूल्स में से एक अफोर्डेबल अमाउंट में अपना प्रोग्राम कर रहा होगा. इट कैन बी एनीथिंग. इट कैन बी सर्टिफिकेशन, मास्टर्स, डॉक्टरेट, कुड बी एनीथिंग. And the kind, I think, अगर थोड़ा सा मैं update दूं, a lot of foreign universities have started showing interest in India as a potential market. So it is, I think, not so Indian colleges are not going to be competing amongst themselves. So it's going to be competition amongst the globe, I guess. And India, I think, not only for education, I think for every other thing. ये आपका ना वो science lab है India, जहाँ पे सारे experiment हो सकते हैं. और एक्चुअली वो किसी भी फील्ड का हो, इंडिया अगर वो एक्सपेरिमेंट यहाँ सक्सीड कर गया, आई थिंक दिस वाज सेड बाय बिल गेट्स. सो अगर ये सक्सीड कर जाता है ना इंडिया में, तो आई थिंक दैट बिजनेस इज गोना बी कैन बी टेकन केयर एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. True. Good. I mean, Suraj, this is altogether new perspective, क्योंकि edtech को लेके honestly if you ask me, मैं भी डर जाता हूँ. मुझे भी बहुत सारे hesitance है. And the same time, because of Byju's cases, Vedantu's cases, there are a lot of news, rather negative news in and around, and I think it will take some time to rebuild that positivity that was there in and around. And since मैं खुद इस बैकग्राउंड से आता हूँ जहाँ पे on almost on daily basis मैं खुद अपनी तरफ से कुछ कोशिश कर रहा हूँ build करने की, so VC network, and so I know for a matter it may take some time to build back the reputation, but the same time with the vision, with the right mindset, and with the right ethical way to do the business, I think certainly as मैंने जैसा कहा कि एजुकेशन एक ऐसा सेगमेंट है बॉस जिसमें ढंग से काम करो तो बहुत ज्यादा डिमांड है. And there is a need. Certainly, it is okay. And if I have to tell you, आजकल ना जो स्टार्टअप हमारे एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो want to start anything. So वो वैल्यूएशन के पीछे अगर नहीं भागेंगे ना, अगर वो स्टेबिलिटी की तरफ जाएं, तो आई थिंक वी हैव अ मैसिव पोटेंशियल. बिकॉज आप ना जैसे बायजूस और फिजिक्स वाले को अगर मैं लेके चलता हूँ, बायजूस वी अंडरस्टैंड दे बिल्ट अ स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट, फिर उससे मार्केट किया, वैल्यूएशन पे आए, इन्वेस्टर्स आए,
इस तरीके से वो बड़ा बना. सिमिलरली फिजिक्स वाला ने क्या ये सब किया, उनका जो टाइम आया वो उनके यूट्यूब चैनल से आया कोविड टाइम के बाद. Actually, they were made king by the customer, not by the the investors. वो अब तो चलो ठीक है, they have gone into a different league altogether. But when I talk about the starting, तो बायजूस को starting ही वैसे हुआ था that it was not something कि जो फिजिक्स वाले के साथ थोड़े से इमोशनल वैल्यूज लोग कनेक्टेड थे. अगर आप अलग पांडे जी को देखें कभी तो it still feels वो ये तो यार अभी भी ऐसा लगता है कि कोई हमारा नेबर होगा या someone who is actually telling us the right path. अगर आप देखो तो दोनों ना वो साइकी डिफरेंट है. तो आई थिंक rather than for all the young entrepreneurs जिनको भी करना चाहिए, I guess valuation game is something because I have attended a lot of expos, startup के जहाँ पे लोग आते हैं, investors, VCs आते हैं. In fact, there are a lot of startups who come for investments also. तो everybody has this idea, valuation बना देंगे, ये फंडिंग आ जाएगी, फिर हो जाएगा. बाकी you have an employee, you have your employee base, you have your ecosystem. So nobody's talking about them. So you cannot, just because you have got a good investment, you cannot left them out in open कि भाई देख लो, अब आपको सैक करे तो वो सैक करे, आपको रखे तो रखे. That is not our concern. So that ideology has to be changed. So if we actually focus on the real problem, then वो problem के साथ साथ आपको stability भी मिलेगी और आपको profitability भी आएगी. Otherwise वो फंडिंग गेम में, वो वैल्यूएशन गेम में अगर आप फंस जाते हो, so the entrepreneur makes money but the entire business bleeds. So yes, प्रॉब्लम वही आपका बिजनेस का एक जो फोकस होता है इन जनरल सॉल्व अ प्रॉब्लम और टू ऑफर समथिंग. अब ये चेंज हो, सबसे पहला फोकस होता है भाई फंडिंग लाओ. तो ये पूरा डायनेमिक ही चेंज हो गया. पहला इंटेंशन सॉल्व करना या कुछ सॉल्यूशन ऑफर नहीं करना, पहले पैसे उठाना, उसके बाद चीजें देखें. Then लाजमी सी बात है, अगर मैं आपको पैसे दे रहा था, you got to work on my terms and condition, and that's one of the major area where Baiju has also misplaced its priorities, जहाँ पे it could be one of the reason that has got actually failed, क्योंकि the way investors were trying to make them an aggressive, at the same time उनके best practices भी compromise you, and then the rest we know the story. Top to bottom flow होता है actually. Now investors want the return. Now the founder wants his team to generate revenue. Now the manager wants the person to be more aggressive. वो work culture, work life balance, people talk about work life balance इतना, फिर वो वहीं से आता है. If you see ये last 2 साल में काफी हमने सुना है, you go on LinkedIn, work life balance. Why? Because वो culture, because it is affecting the entire ecosystem of any organization. तो वो ऐसा नहीं होता कि ऑर्गेनाइजेशन कल्चर जो बुक में है या आपके पास सारी चीजें ऑन प्लेस है, आपको सर्टिफिकेशन मिल गया, ग्रेट वर्क टू प्लेस, एंड देन यू हैव अ प्रॉपर एंटायर टीम, तो उससे आपका इकोसिस्टम बन जाता है. दैट इज नॉट द केस. Every organization का culture could be different in different locations, because culture is something what people build actually. So if I have 5 offices, so my culture, organizational culture in 5 offices are different because of the people, क्योंकि लोग हैं जो आपका culture बनाते हैं. तो I think we should not miss the basic points, I guess. तो जैसा कि आपने बोला कि yes, it's actually a very long topic. इस पे तो डिबेट क्या, इस पे कितना कुछ हो सकता है, इस पे पॉडकास्ट बनाए जा सकते हैं. And I think I have heard a lot of sane people, sensible guys, intellect people talking about it. So few people resonate with this and few still have that psyche, नहीं यार, I want to get into the funding game. So good luck. I think whatever works for everyone. तो वो होता है ना कि जब जागो तब सवेरा. तो I think whenever you wake up, I think that's the good morning call. There is no one fit solution for everybody, so that's the problem. But yeah, so as long as people are being conscious, as long as they are legit, they are trying to solve the problem, and we have hundreds of such examples जहाँ पे companies are surviving certainly and in a good way. So yeah, good Suraj, thank you for so much for giving me a new perspective of the edtech, because जैसा मैंने कहा मुझे भी बहुत सारी गलतफहमी थी, and वो थोड़ा सा डर आज भी है edtech को लेके, but at the same time it will take some time, but this gives altogether a new perspective, and Learning Root might be one of the major player that they may bring the changes as well, because when you run a business through bootstrap model, it by default is going to be, I'll not say easy, but at the same time from the principle and ethical way it has to be in a right direction, otherwise आप sustain नहीं कर पाओगे. So thank you so much for your time. I know हमने शुरू किया था करण के साथ, we end up doing with you Suraj, but thank you so much for your time brother. It was actually my pleasure, and love to we loved actually the time we spent, and that's the reason I envy you actually on some points, because you take a lot of podcasts, and I think that's a major learning, and I am fascinated by the learning. आप किसी अलग-अलग सेक्टर के लोगों से बात करते हो, the kind of learning जो आपको मिलती है ना बुक्स में नहीं मिलती है, वो यूनिवर्सिटी में नहीं मिलती है, because you understand the entire experience. You have covered our 8 years 9 years of journey, and you have in last 1 hour आपने वो सब imbibe कर लिया अपने आप में. So I envy you for this, and that's the reason I asked you सबसे पहला question, how was the experience?
So I think जो different sectors के बारे में अलग अलग लोग आके अपना experience share करते हैं, I think that's the massive learning. If you know things, if the fundamentals are clear, I think you can build anything out of it. Thank you so much again for having us.